مسیح خداوند کے عظیم و بابرکت نام میں ناظرین، میں سلیم اقبال لائیو سیشن میں یوحنا آباد میں اس وقت موجود ہوں، اور میں آپ کو ایک خبر سے اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ آصف ٹاؤن انم روڈ پر سنجن نگر اسکول میں ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ FIR کے مطابق ساری رپورٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں 8 سالہ جو بچی سزین ہے اس کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی، اس میں ایک بچے کو نامینیٹ کیا جس کا نام جوئل ہے، اور ابھی کچھ چند روز قبل منسٹر فار ہیومن رائٹس اعجاز عالم اگسٹین جب متاثرہ بچی کے گھر گئے انصاف دلانے کے لیے، دادرسی کے لیے، ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے، تو وہاں پر سزین کے جو والد ہیں شہزاد، انہوں نے منسٹر فار ہیومن رائٹس کو اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو سزین کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو ملزم گرفتار کیا گیا ہے وہ ہمارا ملزم نہیں ہے، بلکہ سزین کے ساتھ جس بچے نے جنسی زیادتی کی ہے، جس بھی بندے نے جنسی زیادتی کی ہے، وہ ملزم اور ہے۔ اور اسکول انتظامیہ جو ہے، سنجن نگر اسکول کی جو انتظامیہ ہے، وہ اس سارے وقوعے کو چھپا رہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو متاثرہ خاندان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے منسٹر فار ہیومن رائٹس کو، اور یہاں پر سٹوری جو ہے ایک نیا ٹوسٹ لیتی ہے، اور والدین کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے منسٹر فار ہیومن رائٹس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی، اعجاز عالم صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اسکول میں اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اسکول ابھی تک کھلا ہے، اس اسکول کو بند کر دینا چاہیے جب تک یہ SOPs کے تحت جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسکول میں کیمراز کا جو بیک اپ ہے وہ صرف 1 ہفتے کا، اور پھر کیمراز بھی نہیں لگے واش روم سائٹ پہ، اور یہ بھی بہت بڑی نیگلیجنس تھی اسکول انتظامیہ کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے کرسچن کمیونٹی کو ہلاک رکھ دیا، 8 سالہ بچی، اور اس وقت جو متاثرہ خاندان ہے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، خدا اپنا صبر اطمینان دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل ملزم وہ بھی گرفتار ہو۔ تو ایک ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو وکٹم ہے، جو ملزم ہے، اس خاندان سے بھی ہم بات کریں، ان کے موقف کو بھی ہم جانیں۔ تو اس وقت میں جوئل کی ماما اور والد اور اس کی فیملی اور اس کے نیبرز میں جتنے لوگ جو ان کی صفائی میں بولنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں موجود ہوں۔ تو آپ جو ہے جوئل کی والدہ سے کرواتے ہیں۔ بات جی، کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ کے بیٹے نے آپ کو کیا بتایا؟ میرا بیٹا 22 تاریخ کو اسکول نہیں گیا، جب وہ 23 کو جاتا ہے تو وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے تو ٹیچر آئی ہے، ٹیچر تمینہ، میڈم تمینہ آئی ہے تو اسے کہتی ہے جوئل ادھر آؤ بات سنو جی، جوئل آپ نے اس بچی کو مارا ہے؟ جوئل کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہم کبھی ادھر والی سائڈ پہ آئے ہیں، میں نے نہیں کبھی اس بچی کو دیکھا۔ اور میڈم تمینہ نے کہا جوئل تو نے اسے مارا ہے، تو وہ بچی اس کو لے کے چلی گئی ہے۔ جب میڈم چلی گئی ہے تو جوئل کی 12 بجے چھٹی ہوئی ہے، جوئل گھر پر آتا ہے، مجھے بتاتا ہے ماما میڈم تمینہ ایک چھوٹی سی بچی کو میرے پاس لائی ہے، تو اس نے کہا کہ تو نے سے مارا؟ ماما جانتے کل مجھے بھاگا، میں تو گھر تھا۔ میں نے کہا ہاں جی بیٹا آپ تو گھر تھے۔ آپ 22 تاریخ کو آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں گیا؟ میرے بیٹے کو بخار تھا، صبح جب میں 5 بجے اٹھی ہوں تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کو بہت تیز بخار، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کس کہا، ڈاکٹر کو آپ نے چیک کروایا؟ میرا ہسبینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو چلڈرن ہاسپٹل سے ڈاکٹروں سے ہسبینڈ نے پوچھا ہے کہ میڈیسن کون سی دیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میڈیسن دے دے، تو پھر اسٹور سے جا کے ہسبینڈ لے آئے ہیں میڈیسن۔ اچھا جی، یہ 22 تاریخ کا واقعہ، جی، 23 کو آپ کے بیٹے نے بتایا کہ اسکول انتظامیہ نے یہ بات کی ہے۔ جی جی۔ تو بھائی آپ نے کون سے ڈاکٹر صاحب کو اپروچ کیا؟ میں نے ڈاکٹر مریم سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ابھی آپ پیناڈول پہ رکھیں اور آج کے دن منگل والے دن اس کو چھٹی کروا دیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں 2-3 دن بعد اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوئی تو آپ کو دیں گے۔ آپ کا فون جو ہے اس کی ریکارڈنگ یہ آتی ہے کہ میں مریم کو آپ نے کال کیا؟ جی کال نہیں کی، میں ان کے پاس گیا ہوں، پھر انہوں نے آپ کو کس نے انفارم کیا کہ اس کو بخار ہے؟ میں گھر
पे था। अच्छा, घर से ही आप गए हैं? जी, मैं घर से निकला हूँ तो मैंने ही उसको कहा है कि आप छुट्टी कर दो, आज आप स्कूल ना जाओ। मंडे वाले दिन उसको देखा रात को कि सुबह ट्यूसडे है तो उसको बुखार बहुत तेज है, क्योंकि वो उधर से पैदल आते थे, तो पैदल आने की वजह से मैंने कहा ये बुखार हो जाएगा, इसको फिर दोबारा आज छुट्टी कर लो। छुट्टी कर ली जी। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 12 साल और 7 माह। उसके मतलब रिकॉर्ड के नाज़रीन, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अभी बाजी ने भी बताया कि 22 तारीख को मेरे बेटे ने छुट्टी की है, उसको बुखार था और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमने उसकी जो है मेडिसिन भी ली है। तो अभी एक मुख्तलिफ ग्रुप में एक ऑडियो बयान जो है सुजैन का जो मतलब गर्दिश कर रहा था, जिससे मुझे भी पता चला और हम फिर उसके घर पहुंचे लाइव वीडियो के लिए अपनी बात रखी। तो मैं आपको बयान सुनवाना चाहता हूं जो बच्ची ने पहले दिया था, तो उसके बाद मैं आपको फिर असल हकायक की तरफ लेके जाऊंगा। जी भाई, प्ले कीजिएगा साहब। मेरा नाम सुजाना शहजाद है, मैं संजय नगर स्कूल में पढ़ती हूँ। 8 साल की हूँ, 22 जून को मेरी चाची 8 साल है। मैं वॉशरूम में जा रही थी तो बड़ा लड़का मेरे पीछे है, उसने वॉशरूम के अंदर मेरे साथ बदतमीजी की है और उसने मुझे थप्पड़ मारा है और मुझे धमकी दी है, अगर आपने अपनी टीचर को बताया तो मैं अपने से बात बना के आपकी टीचर को बताऊंगा। और जब हम लोग सुबह स्कूल गए थे तो मैम फरजाना ने कहा था कि अगर लड़का मिल गया तो आपने अपने मम्मा पापा को नहीं बताना, और मैम तरमीना ने ये धमकी दी थी अगर आपने बताया तो आपको स्कूल से निकाल देंगे और आपकी टीचर को भी बताएंगे। ये नाज़रीन वो बच्ची का बयान था जिसमें वो कह रही है कि 22 तारीख को हादसा हुआ और पहले तो स्कूल इंतज़ामिया जो है अपने साख बचाने के लिए ये कहती रही है कि जिस बच्चे का पहले बच्चे ने कहा कि स्कूल टीचर्स ने मुझे ये बातें सिखाई हैं कि आपने ये बातें करनी हैं। बाद में उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया ने ये प्लानिंग की कि उस बच्चे का नाम दे दिया जाए जो स्कूल में आया नहीं था, ताकि जब बच्ची ये कहे कि जोयल नाम के बच्चे ने ज्यादती की है तो हमें ये बात कहने में आसानी हो कि जोयल तो 22 तारीख को स्कूल आया नहीं था, आपकी बच्ची झूठ बोल रही है। अब स्कूल इंतजामिया अगर इस केस को मिस हैंडल होने की 15 पे कॉल करते, पुलिस बुलवाते और शवाहद ज़ाया करने की बजाय असल हक़ाइक़ से आगाह करते तो ये इतना बड़ा मसला ना होता। अब एक माँ जो है वो भी अपने बेटे के लिए रो रही है और वो भी ये कह रही है कि मेरा जो बच्चा है वो बेगना है, उसका कोई कसूर नहीं है और मेरा जो बच्चा है वो पुलिस में ट्रेनिंग करना चाहता था और ट्रेनिंग करके वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अब जो बच्चे पे इल्ज़ाम लग गया है कि इसने बच्ची के साथ कोई जिनसी ज़्यादती की है। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आया हूँ। बच्चे के जो नेबर्स में कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं तो जोयल का क्या करना था, वो कब से इसको जानते हैं। बाजी, जोयल को आप कब से जानते हैं और क्या उसके किरदार के तलक से आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 साल से तकरीबन ये इधर आए हैं, हम लोग उससे पहले थे जी इधर ही थे। तो बच्चे को मैं बहुत कम बाहर देखती थी, अगर बाहर आना जाना था ये 2-3 घर छोड़ के हमारा घर है जी, तो ज्यादातर जोयल और उनके बाकी 2 बच्चे उनके पापा आते 9-10 के करीब, तो वो उनको साथ बाहर गली में खेलते जी। उस बच्चे को मैंने बहुत कम देखा कि वो बाहर ऐसे बच्चों के साथ खेल रहा है या आवारागर्दी कर रहा है, इस तरह की कुछ उसकी बात नहीं। कभी उसको कोई कंप्लेन आई इस किस्म की जो इस पे इल्जाम लगा है किसी और बच्चे की तरफ से या उसका? नहीं, कभी भी नहीं। आके ये बाउंड्री बंद थी पहले भी, लेकिन बच्चा यहाँ हमारे घर के कभी कभी उधर भी वो ट्यूशन जाता है। अच्छा। वो पीछे हमारे घर के सामने ट्यूशन जाता है और उसको ट्यूशन आते जाते देखा है बाहर बहुत। अगर वो बाहर होता है भी तो उनकी मामा दरवाजे में खड़ी होती है, हमारी ज्यादातर मुलाकात रास्ते में होती है जी। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लगते हैं हमसाए हैं आप भी? जी, हमसाए में और मैं दिल कमाऊँ जी। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि जो हमारी आवाज़ बने, जिन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर के हुक्मरानों तक पहुँचाया जी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चा है वो बेगुनाह है जी।
वो 22 तारीख को एब्सेंट था जी वो 23 को गया और टीचर ने कहा कि आपने इसको मारा है। उसने कहा कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैंने नहीं मारा। जी जी जब वो 24 को उसको बुलाया तो उसको अलहदा कमरे में बैठा दिया जी। और बच्ची को टॉर्चर करके बताया कि हमने इसी का नाम ही लेना है। जी तो जब वो सामने आया तो उन्होंने पुलिस को बुला के उसके हैंड ओवर कर दिया कि ये जोएल बैठा हुआ है। जी हमारी गुजारिश है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो अदलिया के हमारे सारे इंचार्ज हैं, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस अदारे हैं जिसमें सहाफ़ी भाई, न्यूज़, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। चाहिए तो ये था कि जब जोएल को 24 तारीख को या 23 को बुलाया गया है, जी उनको सामने किया गया कि बच्ची उसको पहचाने, जी तो सर चाहिए तो ये था कि बच्चे को क्लास के अंदर छोड़ा जाता जी और बच्ची को सामने लाया जाता कि आप इन बच्चों में से पहचाने के मुजरम कौन है। जी तो आपने तो स्कूल वालों ने पहले ही डिसाइड करके जोएल को जाते ही अलग कमरे में बैठा दिया जी। और बच्ची को बुलाया, उसको पहले सिखाया तो उसने आते ही कहा कि जोएल, ये मुजरम मेरा जोएल ही है। जी अब जब के देखें कि हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान ये बात सोच सकते हैं जी कि 22 तारीख को बच्चा प्रेजेंट ही नहीं है स्कूल के अंदर। सर मैं आपको बताता हूँ, स्कूल का रिकॉर्ड भी निकलना चाहिए स्कूल का ना, रिकॉर्ड हमारे कैमरा पास है, रिकॉर्डिंग हमारे निकलनी पास है सर, जो उन्होंने दिया है। जी गैर हाजिरी का भी रिकॉर्ड हमारे पास है जी। और जो उन्होंने उसका करेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दिया वो भी हमारे पास है। जी। वो उन्होंने स्टैंप लगा के दिया है कि बच्चा 22 तारीख को एब्सेंट है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जब बच्चा 22 तारीख को एब्सेंट है तो वो मुजरिम कैसे बनाया जा रहा है। जी थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, पादी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो चर्च में जोएल जिस चर्च में जाता है उनसे भी जानते हैं। पादी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा बेगुनाह, बच्चा बाकायदा छुट्टी पर है और चर्च में उसके बहुत अच्छे प्रोग्राम है और उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बच्चे के अंदर ऐसी आदत कोई नहीं देखी जाती जी क्योंकि 8 साल से मैं भी इस खानदान में दुआ करने को आता हूँ। उस बच्चे में कोई ऐसी आदत नहीं जिसकी वजह से हम भी इस बात पे नाज़रीन, ये पेरेंट्स और रिश्तेदार की बातें आपने सुन ली और बेटी का भी रिकॉर्ड जो पहले से रिकॉर्ड था वो भी हमने बयान कर दिया। तो दादा भी बात करना चाह रहे हैं, सर उनसे भी जानते हैं। जी बताइए जी। हमारा बच्चा जोएल नाम वो एब्सेंट है जी इन्वेस्टिगेटर ने जय के जो लोग प्रेजेंट हैं जी उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं जी। की, हमारे बेगुनाह बच्चे की जो कि प्रेजेंट नहीं है, जी। एब्सेंट है, उसकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करके और उसको जेल की सलाखों के पीछे और हम भाग गए। वजीर आजम, वजीर आला, बल्कि पूरी चीफ ऑफ आर्मी से गुजारिश करते हैं कि हमारे बेगुनाह बच्चे को आजाद किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी जो कोशिश है वो यही होती है कि हकाइक पर मबनी जो खबरें वो सामने लेके आई जाएं, जो हकाइक हैं उनसे अवाम को आगाह किया जाए। तो मैं भी ज़िम्मेदारान जो हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो मुकर्रर किया जाए और स्कूल देखें कि कितना अफसोस है, अफसोस का मकाम है स्कूल का कि उनके कैमरास की रिकॉर्डिंग भी सामने आई और एक हफ्ते का बैकअप है। अब आईओ जो है वो कोशिश कर रही हैं कि स्कूल का जो कैमरास हैं वो फॉरेंसिक लैब से उनका सारा रिकॉर्ड जो हासिल किया सके और डीएनए रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है कि डीएनए रिपोर्ट में क्या सामने आता है, वो अभी बाद के मामला हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारान से ये दरख्वास्त करूँगा कि जुडिशल कमीशन जो है वो मुकर्रर किया जाए, वो इन्वेस्टिगेशन करे और असल जो मुल्ज़िम है वो सामने आया जाए और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाए सज़ा का कि क्या सज़ा दी जाए। अभी ख़ानदान ने अपने खदशात जो थे वो बयान कर दिए और इसी तरह जो सुज़ैन के वालिदैन हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये खदशा है, उनका भी कहना ये है कि जोएल हमारा मुल्ज़िम नहीं है, हमने इसको मुल्ज़िम नहीं करा दिया। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आई है, लेकिन हमारी बच्ची के साथ जिसने ज़्यादती की है वो कोई और शख्स है, वो जोएल नहीं है। थैंक यू सो मच जी, साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मैं ये कहना हक और सच के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस खबर को आप शेयर करें ताकि हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। और मैं आज नाज़रीन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है इस वक्त बहुत बड़ी पावर बन चुका है और हमारे जो आला पुलिस अफसरान हैं सोशल मीडिया के जरिए ऐसी खबरों पर एक्शन लेते हैं और उन तक खबरें पहुँचती हैं।
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک جوڑے کے ساتھ جو دینے والا جس نے پورے پاکستان کو انٹرنیشنل کی گئی اور الفاظ نہیں ہے کہ اس دکھ کو اس طرح کو بیان کیا جا سکے. تو ہم اس کے لیے بھی حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ عثمان مرزا اور اس کے گینگ کو گرفتار کیا, اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عثمان مرزا اور اس کے گینگ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جلد اس کا انصاف کیا جائے. اسی طرح ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سوزین کے لیے بھی ایک پٹیشن کیا جائے تاکہ اصل جو ہے وہ سامنے آئے, اور جب تک اسکول کے SOPs کلیئر نہیں ہوتے, اسکول اپنے معاملات کو کلیئر نہیں کرتے, اس وقت تک اسکول کو جو بند کیا جائے. یہ وزیر تعلیم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایکشن لیں. اور ہمارے سننے میں یہ بھی ہے کہ اس میں 2-3 واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے. اب یہ واقعہ چونکہ رپورٹ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اسکول جو بڑی ہٹ درمی کے ساتھ انتظامیہ چل رہی ہے اور اصل